Many ideas and inventions are groundbreaking. They have the potential to change the way we perceive the world today. Thomas Alva Edison, in order to prove that his direct current was better than Nikola Tesla's alternating current, had electrocuted an elephant. Greetings to all in Dr. Abha Chemistry Pathshala. So let's continue with NCERT Class 11 Unit 12. So in my last lecture I had spoken about resonance, and we had discussed how the pi electrons and the lone pair of electrons, when they are set in delocalization, they increase the stability of the compounds. I'm going to break boundaries of resonance. We all know chemistry is the subject of contradictions. So it's not that I'm fully going to contradict what I spoke in my previous class, but yes, I'm going to give few add-ons to resonance. So today's topic is more than resonance, hyperresonance, which we call as hyperconjugation. Please allow me to share a very small story on hyperconjugation as why this concept exists today. There was a scientist called Baker and Nathan. This scientist was working with electron donating capacities of alkyl group. We all know that alkyl groups, they exert plus psi effect, and the order of the plus psi effect is the maximum it is given by tert butyl, followed by isopropyl, then ethyl, and then methyl. So he had put these different groups to benzene ring or to any other conjugated system to see how this electron donation capacity enhances. To his surprise, he found out that with methyl, the electron donation capacity was maximum compared to tert butyl, where there was no resonance observed. He started digging and he found out that in this case, it is not the inductive effect which is taking place. In these cases, there was a special resonance which was taking place. Carbon and hydrogen ka single bond, carbon and hydrogen single bond from alkyl groups next to the benzene ring, they were being broken. They were being broken and their electron was being accepted by the multiple bonds in breaking the double bonds of the benzene ring, and then the resonance was set. So what we are going to talk about in hyperconjugation is we are going to break the CH sigma bond, but only when there is an unsaturation next to that CH sigma bond, either an unsaturation or they can be an unoccupied p orbital, right, where the electrons can be accommodated. So Baker and Nathan call it hyperconjugation. Also he named it as no bond resonance. The reason for no bond resonance was that there was a point of time when there was no bond between carbon and hydrogen. So I think I'll need a screen to explain you better the concept of hyperconjugation. So how about moving straight to the screen for hyperconjugation. इसका बेस क्या है? सी आपको मैंने ऑलरेडी इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है. इंडक्टिव इफेक्ट आप आई बटन में भी देख लो, आपको इंडक्टिव इफेक्ट मिल जाएगा. आप चाहो तो एक बार देख के आ जाओ इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है. जैसे जैसे एल्किल ग्रुप्स बढ़ते आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाता है. तो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखो तो ये है. सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट टर्ट ब्यूटाइल देता है, फिर आइसोप्रोपाइल देता है, फिर एथाइल देता है, फिर मिथाइल देता है. इसका रीज़न क्या है? बड़ा सिंपल है. इसका रीज़न ये है कि जो CH3 है वो क्या है? वो प्लस साई ग्रुप है. तो जितने CH3 लगेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको मिलता जाएगा, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिचर रिंग होती जाएगी या कोई भी सिस्टम होता जाएगा. बट एक इसमें एक्सेप्शन देखा गया है. यू नो वेरी वेल केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन. इसमें एक एक्सेप्शन देखा गया है. एक्सेप्शन ये है कि जब भी आप एल्किल ग्रुप को किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड आप समझते हो, पाई सिस्टम हो गया, पाए हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बेंजीन हो गया, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम. जब भी आप यहाँ पर लगाते हो ना इसको, तो ये उल्टा हो जाता है. तो जो इफेक्ट है ये उल्टा हो जाता है. दिस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय बेकर नाथन. सबसे पहले ये बेकर और नाथन ने ऑब्जर्व किया कि ये इफेक्ट उल्टा हो जाता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट.
और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अगर आपने बेंजीन रिंग में, ध्यान दीजिएगा, एक मिथाइल लगाया और आपने बेंजीन रिंग में भर भर के मिथाइल लगाए, टर्ड ब्यूटाइल लगाया, मिथाइल लगाया, आपकी एंटिसिपेशन क्या होगी? आपकी एंटिसिपेशन ये होगी कि इसमें रिंग विल बी रिचर इन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि खूब सारा इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डू यू नो, ये दिखाता है, ये प्लस आर दिखाता है। मेरा प्रीवियस वीडियो है प्लस आर और माइनस आर का, देखना हो तो देख लीजिएगा। वैसे आपको कुछ ऐसा दिक्कत होगी नहीं अगर नहीं भी देखेंगे तो। ये प्लस आर दिखाएगा, इसमें मैं रेजोनेंस ड्रॉ कर पाऊंगी, इसमें मैं नो प्लस आर, नो रेजोनेंस। यू गेट माई पॉइंट? इसी को कहते हैं बेटा, इसी को आप कहते हो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, इसी को आप कहते हो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एक बार साथ साथ करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है बेटा? इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन आप समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये हमने पहली बार किया है गाइस, प्लीज माइंडेड। आज तक हमने सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किया है, हमने लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन किया है। अब हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करेंगे, बट सिर्फ CH के, ओनली CH ऑफ एन एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ एन अनसैचुरेटेड सिस्टम, यानी कि जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होंगे, और टू एन एटम हैविंग अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे आपको CH3+, आप देखिएगा इसमें p खाली पड़ा हुआ है, कोई ऐसा हो जिसमें p अगर खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक परमानेंट इफेक्ट है। इनफैक्ट इट्स अ काइंड ऑफ रेजोनेंस गाइस। आप चाहो तो इसको रेजोनेंस भी बोल सकते हो, इट्स अ स्पेशल रेजोनेंस। वाई इट्स ए रेजोनेंस ऑफ स्पेशल टाइप? इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, इसीलिए आप इसको कहते हो स्पेशल रेजोनेंस। और इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हो आप, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। हमेशा क्या होता है? पाई पाई होता है, पाई और लोन पेयर, इसमें सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन होता है। ये प्रोपीन है। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम हो गया। और अनसैचुरेटेड के साथ में आपको क्या ढूंढना है? CH। तीन CH है, 3 CH यू हैव। किसी को भी ब्रेक कर लो, तीनों ब्रेक होंगे। तो ये H नंबर 1 है। ये ऑल्दो तीनों सेम है बेटा, मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रही हूँ ये। अब क्या होगा? ये यहाँ को जाएगा, जैसे ये यहाँ को जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अगेन माइंडेड, CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और जो सेकेंड आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, ये पहला प्रोपीन है, सेकेंड जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? ये सब इंटैक्ट है, कोई ये H+ वहीं रहेगा। इसका एक और नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, मुझे अब याद आ गया, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। CH2, राइट। इसको क्या मिल जाएगा? नेगेटिव। ओके, ये पहला स्ट्रक्चर, ये इसका पहला, ये तो मेन स्ट्रक्चर है, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर, और इसका ये पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। बिल्कुल ऐसे ही बेटा आप H2 और H3 को ब्रेक करोगे तो आपको नंबर 2 और नंबर 3 मिलेंगे। जब आप H2 और H3 को ब्रेक करेंगे तो आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नंबर 2 और नंबर 3 भी मिलेंगे। तो आपको कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिल रहे हैं? आपको 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है बेटा। ये HC वर्मा नहीं है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, सो आपके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं आपको। अच्छा खासा स्टेबल होगा प्रोपीन आपका, राइट। और जो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, विच आई वॉज रेपिटेडली थिंकिंग, वो नाम है बेटा, मैं ऊपर लिखूंगी जहाँ पे मैंने इसके नाम लिखे हैं। बेकर नाथन पहला नाम, हाइपर कॉन्जुगेटिव दूसरा नाम, और तीसरा नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, अभी समझाती हूँ क्यों। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसका तीसरा नाम है। देखो क्यों इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में देखिए यहाँ पे H और C, यहाँ पे देखो बेटा कोई बॉन्ड नहीं है इनके बीच में, बट वो वही रहता है बच्चे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी होती है ना बेटा। इमीडिएटली ये टूटा और फिर ये घूम के आया, फिर दूसरा वाला टूटा, फिर तीसरा H टूटा। सो कहीं पे ये जा नहीं पाते हैं। ठीक है, सो
फ्री है प्रोटॉन, फिर भी फॉर्मली बाउंड है, फ्री नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ। यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके साथ फॉर्मली बाउंड, ये तो ये जाता कहीं नहीं है, यहीं पे रह जाता है, ठीक है। वरना तो H+ कहीं का कहीं जाएगा, H+ इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बट ये कहीं नहीं जाता है, तो इस वजह से इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और, ठीक है, ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अभी हमने पिछली क्लास में किया था गाइज, अगर आपको याद हो रहा है, हमने पिछली क्लास में रेजोनेंस किया था, तो होपफुली आपको याद होगा। मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करती हूँ बेटा, मुझे स्पेस नहीं मिल रही। राइट, ओके। सो ये आपका टोलिन है, और इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, CH3 मैंने लगाया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ चला गया, ठीक है। तो सेकेंड डायग्राम आपका क्या बनेगा, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये H+ रहेगा, बाकी H2 पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पर नेगेटिव मिल जाएगा। आपको याद आ रहा है, हमने प्लस आर इफेक्ट में भी कुछ ऐसा ही किया था, और बिल्कुल ऐसे ही आप बाकी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, ठीक है। आई जस्ट टेक अ मिनट एंड ड्रॉ रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स एज वेल। यहाँ पर देखिए, ये कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है, याद आ रहा है, ये सेकंड पोजीशन है। 2, 4, 6 आर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, जो कि रेजोनेंस की पोजीशंस हैं। फिर ये यहाँ पे आया, और फिर इसके बाद ये यहाँ आया, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम आपका ड्रॉ होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स बॉन्ड की पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी, राइट। सो आप देख रहे हो, आपने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, आपने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस टोलिन से बना लिया, लेकिन अभी आप और भी बना सकते हो। ये आपने पहले हाइड्रोजन के साथ बनाए, फिर आप सेकेंड हाइड्रोजन के साथ 3 और बनाएंगे, और 3 आप थर्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। आप 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। किस लेवल का रेजोनेंस हो रहा है, तो आप देखिए ये कितना स्ट्रांगली रिंग को दे रहा है इलेक्ट्रॉन। और गाइज, अभी आप ये वाला ले लो, ध्यान से देखिए, अब आप ये ले लो, टर्ड ब्यूटाइल, C के साथ एक भी H नहीं है, इस C के साथ एक भी H नहीं है, सो इसमें क्या होगा, नो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। उल्टा हो गया ना ये इंडक्टिव इफेक्ट का। आई थिंक अब आप कैलकुलेट कर लोगे, इसमें कितने बनेंगे, इथाइल है ये, इसमें कितने बनेंगे, 2 हैं कार्बन। पाई के साथ देख लो आप, इस पाई के साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव, 2 क्या, 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो एक के साथ 3 बनेंगे, तो इसके साथ 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो 9 अल्फा, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ वाला कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है। तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी भी बताता है। देखिए ऊपर वाले डायग्राम में आप आइए, प्रोपीन है ये, ठीक है, प्रोपीन है। अभी आप ब्यूटीन को ड्रॉ करो, ठीक है, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी भी बताता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। पहली है कि ये क्या करता है, ऑर्थो पैरा को क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई हो जाती है, जिससे अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शंस जो होती हैं, सब्स्टिट्यूशंस होती हैं ऑन बेंजीन रिंग, वो फास्ट हो जाएंगी, ठीक है, वो फास्ट हो जाएंगी। जो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो छोटा हो जाता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नेक्स्ट टू पाई विल बिकम स्मॉलर रेजोनेंस की वजह से। देखिए कैसे, पिंक हाइलाइटर को ध्यान से देखिएगा, यहां पे सिंगल है, यहां पर डबल है। रेजोनेंस पता है ना, अगर आप एक्चुअल बॉन्ड लेंथ निकालेंगे तो इसकी 1.5 आएगी, तो छोटी हो जाती है, क्योंकि कभी सिंगल कभी डबल, तो कार्बन कार्बन छोटी हो जाती है, बिकॉज क्या होता है, रेजोनेंस के अंदर आ जाती है, ठीक है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जेई और नीट के एग्जाम्स में आता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इसमें क्या होगा ध्यान से देखिए, ब्यूटीन, दिस इज ब्यूटीन, दिस इज मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूटीन, और एक और ले लेते हैं, टू कॉमा 3 डाइमेथाइल ब्यूटीन, राइट। इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें डबल बॉन्ड के आसपास देखिए 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 3 6 3 9 3 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन है. So you know which one is more stable. You know which one is more stable. So जो third structure is more stable than the second structure is more stable than the first structure. So ये आप चाहो तो इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इनको ब्रेक करने की हीट भी देख सकते हो, उसी हिसाब से वेरी करेगी. ठीक है. सो इस तरह से आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगा. नेक्स्ट आ जाओ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. जो बच्चे सारे वीडियो देखते आ रहे हैं उनको ध्यान होगा, जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बता रही थी तो मैंने कहा था कि मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी. सी गाइस, अब आप आ जाओ, अगर टर्ट, मैं कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये कार्बोकेटायन है. क्या कारण है? इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे. ये यहाँ आ जाएगा, राइट, ये यहाँ आ जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा. CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और H+ यहाँ हो जाएगा. इस तरह के हम 9 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. तो कार्बोकेटायन हो गया ना, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, और 2 डिग्री में आप कितने बना सकते हो? 6 बना सकते हो. आप अपने आप ड्रॉ करके देख लीजिए. 2 डिग्री में क्या होगा? CH3 CH3 राइट, H. ये नहीं टूटेगा गाइज, ये नहीं टूटेगा, ये वाले टूटेंगे, राइट. सिमिलरली आप फिर 1 डिग्री. सो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी बताता है. ठीक है. सो ये चारों के चारों एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. 4th तो ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है. सो दैट वाज ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन. आई होप गाइज नाउ इट इज क्लियर टू यू दैट व्हेन एल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू बेंजीन रिंग और एन ईन सिस्टम, they start behaving as electron donating systems, right? So when I teach you plus R effect, I will always tell, or when we take up ortho-para directing groups, we always take ortho-para directing groups में जो ग्रुप लगा होता है बेंजीन रिंग के साथ, वो क्या होता है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. लेकिन बच्चे अल्किल ग्रुप से कैसे ग्रुप्स होंगे जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, फिर भी वो ओपी डायरेक्टिंग होंगे. Not because of their lone pair, but because of hyperconjugation. So I hope the video was informative enough. So in my next class, I'll be starting with the next part of the chapter, that is the purification and the isolation of different components of an organic compound. So till we meet in the next class, take care of yourself, study hard, God bless.